वहाँ पर कुछ लोग शायद मछली वछली कुछ पकड़ रहे हैं। चलिए। तो गाइज़ ये है, यहाँ पर एक नदी है, को दिख रहा होगा। तो ये वाला जो नदी है यही नदी, और बाकी रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर कहीं बैठने का जगह है तो चलिए यहाँ थोड़ा बैठेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। मैं तो बोलूँगा अगर उड़ीसा का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो तिकड़पाड़ा का प्लान ज़रूर बनाइए। अच्छी जगह है रिलैक्स करने के लिए। और लेकिन हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद हमें भुवनेश्वर के लिए भी निकलना है। वही तब तक कुछ खा पी लेते हैं। तो गाइस यहाँ से हम नदी की तरफ थोड़ा जाएंगे। नदी को अगर आपको दिखाऊं यहाँ का नज़ारा तो कुछ ऐसा है। ये वाला चीज़ क्या है नहीं पता मुझे, इसका क्या यूज़ है। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताए। ये लोहा लगा हुआ है, शायद नौका वोका को यहाँ रस्सी से बांधने के लिए या कुछ हुक लगाने के लिए करते होंगे। या फालतू में हम ऊपर बैठे हुए थे, यहाँ आके बैठ सकते थे आराम से। यहाँ का नज़ारा भी बहुत सुंदर है। अभी फ़िलहाल आप लोग देखिए ये नज़ारा। गाइज़ यहाँ पर जो तिकड़पाड़ा नेचर कैंप है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं तो वो कौन ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, मैं उनसे आपको मिलवाना चाहूँगा। और उन्हीं के मुंह से अब इसके बाद का फुटेज आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब जानेंगे। तो उनसे बात कीजिए, करते हैं। चलिए। আমি তো সুনীল, সবাই তো জানেন ও সুনীল সাহু। আর আপনি তো সবাই ব্লগেই নিশ্চয়ই দেখেছে। তো সাতকুশিয়া টোটাল ব্যাপারে এখনও তো ক্যাম্পটা বন্ধ আছে, পরেবারে খুলবে। আর সফারি টাইমিংও চেঞ্জ হয়ে গেছে, 4টা থেকে 6টা, এই 7টা অবধি সফারি হবে। রুম টিকরপাড়া ছুটকেই যে কোনো জায়গাতে আপনি চাইয়ে থাকতে পারবে, থাকে ঘুরতেও পারবে। মানে আপনি যে টিকরপাড়া না হলে নদীটা বোটিং করতে পারবো না বা টিকরপাড়া ঘুরতে পারবো না তা নয়, ছুটকেইতেও থেকে আপনি সব কিছু করতে পারবেন, অ্যাক্টিভিটি করতে পারবেন। সব করা যাবে, হ্যাঁ থেকেই সব করা যাবে, থেকে সব কিছু সাইট সিন, বোটিং, সাফারি যা যা আছে। রুমস वगैरह अवेलेबल হ্যাঁ অ্যাভেলেবল হ্যাঁ। রুমের চার্জেসটা কত একটু বলুন। 3664 টেন্ট নন এসি। নন এসি। আর কটেজ হচ্ছে ছুটকেইতে 4000 সামথিং, 4000 কত ভিতরে আসবে ওই কটেজটা। আর পুন্নাকোটে আছে এসি কটেজ আছে। আচ্ছা। আর টিকরপাড়া তো খুলে যাবে পরে পরে। আর ইয়ে বাকি হলো তরবা, বাঘমুন্ডা। আর সবথেকে ভালো এখনো যদি টিকরপাড়া পরিবর্তে আপনি ছুটকেতে এসে থেকে ঘুরতে পারবে, সব কিছু করতে পারবে। সাফারিও ভালো হচ্ছে, ইভিনিংয়ের মধ্যে অনেকগুলো ভালো সাইটিং হচ্ছে। আর বোট সাফারিও করতে, বোটটা 1600 টাকা 8 জনে। 1600 টাকা 8 জন। হ্যাঁ। আর এই যে রাত্রেবেলার কি কি অ্যাক্টিভিটিস থাকে ওইগুলো একটু বলে দাও। রাত্রিবেলা যদি আপনি কি সন্ধ্যার পরে ক্যাম্প ফায়ার করতে পারবে যদি শীতের সময়। আর ক্যাম্প ফায়ারের চার্জেস কি? ক্যাম্প ফায়ার তো চার্জেস সেরকমই নেই, মানে লকড়ি যা লাগবে চার্জেস দেওয়া যাবে। আচ্ছা, লকড়ির চার্জেস দিতে হবে। আর ইয়ে বলছি যে ইভিনিং সাফারিটা হচ্ছে, ইভিনিং সাফারিটাতে আপনি ভালো সাইটিং হচ্ছে, অ্যানিমাল সাইটিং। বোট সাফারিটা মেন ভালো। আর তার ছাড়া সাতকুশিয়া স্যান্ড রিসর্ট, টোটাল স্যান্ড রিসর্ট দিকে যে ঘোরা মানে সাতকুশিয়ার, সেইখানে গাড়ি থেকে ধরে সব কিছু বুকিং আমি করাই। আর স্যান্ড রিসর্টে আপনার যদি নিজেরা বুকিং করেন না, সেখানে যে অ্যাক্টিভিটি প্রচুর আছে সেটা পাবে না। আর সেখানেও একটা জঙ্গল ফঙ্গল ঘুরিয়েও ঢোকা যাওয়ার প্ল্যানিং বি আছে। আর ভালো ভালো ড্যাম আছে, ওয়াটারফলস আছে, অনেকগুলো কিছু আছে স্যান্ড রিসর্টে। সবাই এইগুলো জানে না, যেটা আপনি আমার থেকে পাবে। আর বলছিলাম যে স্যান্ড রিসর্টটা কোথায় আছে? সেটা আছে অপোজিট সাইডে। এটা হচ্ছে সাতকুশিয়া নেচার ক্যাম্প সাইট,
ওই এই গর্জর শেষ পাতে, এটা হচ্ছে গর্জর শুরু। মানে যে সাতকুশিয়া যে গর্জ বলছে, এই যে দেখছে সামনে জায়গাটা হচ্ছে বিনকে, এটা হচ্ছে টিকারপাড়া, কিন্তু সামনে যে দেখা যাচ্ছে জায়গাটা হচ্ছে বিনকেই। বিনকেই থেকে বড়মূল হচ্ছে সাতকুশিয়া গর্জটা, 7 ক্রস জনে সাতকুশিয়া। আচ্ছা আচ্ছা। আর ওই সাইডটা হবে বড়মূল। বড়মুল। হ্যাঁ। আচ্ছা। আর ওখানে যাওয়া যায় এমনি? এই দিকে নেই, আবার আপনাকে বনতলা হয়ে একটা যেতে হবে, মানে আচ্ছা, আচ্ছা। বনতলা হয়ে আপনি যাবে। আর অনুগুল থেকে 100 কিলোমিটার রাস্তা, ভুবনেশ্বর থেকে 130 কিলোমিটার রাস্তা। আঙ্গুল থেকে 100 আর ভুবনেশ্বর থেকে 130। আর এইটা হচ্ছে টিকারপাড়াটা হচ্ছে 60 কিলোমিটার। আচ্ছা আচ্ছা। আর অনুগুল থেকে ছুটকেই হচ্ছে 55 কিলোমিটার। আচ্ছা, এই আপনার নাম্বারটা একটু বলে দিন। আমার নম্বর স্ক্রিনেও এখানে দিয়ে দেবো আপনার, হ্যাঁ আর নাম্বারটার সাথে। হ্যাঁ, আমার নম্বর হচ্ছে 9438588478। আমার নাম सुनील शाह। अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ बहुत देर यहाँ पर रुक चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 1:27, तो अभी यहाँ जितनी जल्दी निकल सकते हैं ताकि हम भुवनेश्वर टाइम पे पहुँच सके। मैं नहीं चाहता ज़्यादा रात हो जाए, तो अब यहाँ से भुवनेश्वर की तरफ रवाना देते हैं। चलिए। तो गाइस अब हम भुवनेश्वर की तरफ के लिए निकल चुके हैं। 1:30 बज गया है, 1:30। सोचा था कि 1 बजे तक निकलेंगे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। हमने महानदी जो है वहाँ पर जाके वीडियो निकाला, और आप वीडियो के अंदर देख पाएंगे जो यहाँ पर नेचर कैंप है, बोटिंग हो गया, या फिर जो भी यहाँ के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, ये सब जो ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं उनसे भी हमने बात की। उनका वीडियो आप वीडियो में ज़रूर देखना, और उनका नंबर मैं दे दूँगा स्क्रीन पे भी, इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी नंबर दे दूँगा। अगर आप कोई यहाँ पर आता है तो उनसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा और यहाँ पर एंजॉय करिएगा। और एक बात गाइस, यहाँ जो भी आता है प्लीज़ कचरा ना फैलाए, ठीक है? ये जगह बहुत ही अनटच्ड है, तो यहाँ पर आके कचरा मत फैलाइए। बहुत सुंदर जगह है, सुंदर जगह को सुंदर ही रखिए। आप लोग कचरा फैलाएंगे तो ये जगह देखने और फिर देखने लायक नहीं रहेगा। लोग यहाँ नेचर को एंजॉय करने आते हैं, कचरा को नहीं। तो यहाँ आइएगा, एंजॉय करिए, अपने फैमिली के साथ आइए, टाइम स्पेंड करिए, मज़ा आएगा आप सबको। सफ़र सामान्य ज्ञान अथवा जानकारी का। क्या आपने कभी देखा है कि एक नदी पहाड़ों को काटकर एक गहरी घाटी बना दे? आज हम बात करेंगे इंडिया के ऐसे ही एक नेचुरल वंडर की, सतकोशिया जॉर्ज के बारे में। सतकोशिया जॉर्ज जो ये वर्ड है, जो ये शब्द है, ये 2 शब्दों से बना हुआ है। सत अर्थात 7 और कोश यानी दूरी की एक प्राचीन, मतलब पुरानी इकाई, लगभग 2-3 किलोमीटर। इसलिए सतकोशिया का शाब्दिक अर्थ है 7 कोश लंबा क्षेत्र, यानी लगभग 14 से 21 किलोमीटर की दूरी। यह नाम खास तौर पर सतकोशिया जॉर्ज के लिए प्रसिद्ध है, जो महानदी के किनारे स्थित एक सुंदर घाटी है। अगर मैं सतकोशिया के लोकेशन की बात करूं, तो ये सतकोशिया जॉर्ज भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, और जो महानदी रिवर्स के द्वारा बनी हुई है। और इसके अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं, अर्थात ये कैसे बना, तो जब महानदी रिवर लगातार पहाड़ों को काटती रही तो धीरे धीरे एक गहरी घाटी बन गई। इस प्रोसेस को हम लोग ज्योग्राफी में इरोशन भी कहते हैं, जहां नदी ज़मीन को काटती है। और अगर मैं इसके रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज़ की बात करूं, तो इनके साथ ट्रिब्यूटरीज़ यानी सहायक नदी भी जुड़ती है, जैसे तेल रिवर, ओएनजी रिवर, जोंक रिवर। ये सभी मिलकर नदी के फ्लो को मजबूत बनाती है। और यहाँ के अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात करूँ, तो ये एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ कहा जाता है कि आपको टाइगर, एलिफेंट, क्रोकोडाइल और कई रेयर बर्ड्स मिलेंगे। यह नेचर लवर्स के लिए ये जगह एक पैराडाइज साबित होती है। अगर मैं यहाँ के क्लाइमेट की बात करूँ, तो यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, अर्थात गर्मी के टाइम आपको काफ़ी गर्मी मिलेगी, जबकि विंटर में मौसम बहुत ही सुहाना होता है। अगर मैं बात करूं कि बेस्ट टाइम जब आप साल में किन महीनों में यहाँ पर आना आपके लिए वाकई लाभदायक साबित होगा, वो होगा अक्टूबर से मार्च। और अगर मैं सतकोशिया जॉर्ज
की और एक खूबसूरत बात करूं तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे नदियां हमारे धरती के लैंडस्केप को बदलती है। ये ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए एक लाइव एग्जाम्पल है इरोजन और रिवर फॉर्मेशन का। और टूरिज़्म की बात तो मैं वीडियो में कर ही चुका हूँ कि यहाँ बोटिंग, कैंपिंग जैसे अन्य कई एक्टिविटीज़ होता है। ये एक इको टूरिज़्म डेस्टिनेशन अब बन चुका है। यहाँ जंगल सफारी तक होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि इस ब्यूटीफुल प्लेस को बचाने के लिए हमें इन्वायरमेंट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसका नुकसान कर सकती है, जो कि इस खूबसूरत जगह को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश का इतना एक खूबसूरत सी जगह हमारे देश की ये बर्बाद हो जाए। हम चाहेंगे लोग यहाँ आएँ, पूरा सफ़र एंजॉय करें, यहाँ अपने परिवार के साथ एक खूबसूरत मेमोरी क्रिएट करें, लेकिन इस जगह को बर्बाद ना करें। इस जगह को साफ़ रखें, यहाँ कोई भी कूड़ा या कचरा ना फैलाए। ठीक है, तो सतकोशिया जॉर्ज सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि नेचर की ताकत और सुंदरता का एक शानदार उदाहरण है। अगर आपको ये ज्ञान और या फिर बोल लूँ ये आपको जो पार्ट है, जो सामान्य ज्ञान का हमने वीडियो में डाला है, अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके सभी दोस्तों को इस जगह की खूबसूरती और इस जगह के बारे में पता चल सके। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या था? गाइस, तो हम यहाँ आ चुके हैं। ये जगह का नाम है पहल। तो यहाँ पर एक सबसे अनोखा बात ये है कि यहाँ एक मिठाई का दुकान नहीं है, यहाँ बहुत सारे मिठाइयों का दुकान है। आप लाइन से मिठाइयों का दुकान देख पाएंगे। जैसे कि ये देखिए, ये एक शॉप है, फिर ये एक शॉप है। ये जितने दूर तक नज़र जाता है उतने दूर तक सिर्फ मिठाई का ही दुकान है। तो ये बेसिकली स्वीट मार्केट ऐसा कुछ बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये छेना पोड़ा है, इसको बोलते हैं छेना पोड़ा। और ये है रसगुल्ला आपका, और ये है छेना कुछ, इसको क्या बोलते हैं भैया? छेना गजा। छेना गौजा, इसको बोलते हैं छेना गौजा। ठीक है, ये सब ये भी छेने का बना रहता है, ये भी छेने का बना रहता है। छेना पोड़ा ये रहा। और छेना पोड़ा का अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो मेरे को 100 ग्राम 30 रुपया का पड़ा। तो मैंने अपने लिए 100 ग्राम ले लिया है और घर के लिए कुछ लेके जाऊंगा सोच रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि घर के लिए पिचक विचक जाएगा, उसका एक टेंशन है। कल मैं पूरी जाऊंगा, वहाँ देखता हूँ, वहाँ अगर मिलता है तो वहाँ से मैं छेना पोड़ा घर के लिए भी ले लूँगा, ताकि घर वालों को भी दे सकूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर। अब आज का मिठाई कार्यक्रम तो हो गया, नेक्स्ट होटल देखते हैं और मिलता है तो अब होटल में जाके फिर दोबारा मिलते हैं। चलिए। यहाँ पर ये उत्कल आइकॉनिक BYD का शोरूम है शायद यहाँ। हाँ, BYD का शोरूम है। मैंने कोलकाता में शायद BYD का शोरूम, मैं नहीं जानता कहाँ पर है, बट यहाँ पर तो इस जगह पे है। अभी हम लोग जा रहे हैं, मैंने वैसे पूरी मारा है, गूगल मैप्स पे पूरी डाला है। अब देखते हैं कि रास्ते में जो रेस्टोरेंट बोल रहा हूँ, रास्ते में कोई रहने के लिए होटल मिल जाएगा तो मैं वहाँ रह जाऊँगा आज की रात। तो गाइस, मैं अपने रूम में आ चुका हूँ। ये रूम मैंने लिया है। एक्चुअली मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ कि मैं जब मिठाई लेके वो छेना पोड़ा लेने गया था, मैंने आपको दिखाया,
तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने गूगल मैप्स में पूरी डाला और मैं पूरी के रास्ते पे ही जो भी होटल मुझे दिखा, मैं सोचा कि उन होटल्स में मैं रह जाऊंगा ताकि सुबह को मैं पूरी के लिए निकल सकूं। तो लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि रास्ते में मेरे को एक होटल नहीं मिल रहा था, एक भी होटल नहीं मिल रहा था, और जो मिले वो मेरे बजट के बाहर हो रहे थे। तो इसके वजह से एक होटल पे मैं रुका। तो मैंने उनसे पूछा कि रूम्स हैं या नहीं, तो उन्होंने बोला रूम्स अवेलेबल नहीं है। तो उस होटल के जस्ट ऑपोजिट में ही एक रास्ता जा रहा था और ऊपर एक बोर्ड था जहाँ लिखा हुआ था लिंगराज टेम्पल 3 किलोमीटर्स। तो मुझे देन याद आया कि मुझे तो लिंगराज टेम्पल भी जाना है पूरी जाने से पहले। तो मैंने सोचा कि चलो पहले तब उस तरफ चल के देखते हैं, वहाँ अगर रूम अवेलेबल हुआ तो मैं वहाँ पर जाने लगा। वहाँ पे भी रूम ना मिले, तो फिर मैंने एक अंकल थे वहाँ, अंकल से पूछा कि अंकल यहाँ क्या कोई रूम है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने पास में एक गली दिखाया और बोला वहाँ से सीधा जाके राइट लेने से एक होम स्टे मिलेगा तुमको। तो मैं वहाँ पर गया, तो वो होम स्टे के बाहर उसका ओनर खड़ा हुआ था। तो उसने बोला कि यहाँ तो रूम है बट सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए तो रूम होगा नहीं, और जो रूम्स हैं वो मतलब अगर तुम सिंगल रहते हो तो उसके लिए तुमको सिंगल वे में तो पे नहीं करना है। उस रूम का प्राइसेस थोड़े हाई थे। तो उसने बोला उसके पास एक और वो है, होम स्टे है, वहाँ जाके रह सकता है। वो कुछ 3 किलोमीटर दूर था। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट रूम तो मिले भाई। और फिर यहाँ पर मैं, उसने मेरे को ये वाले होम स्टे में भेजा। ये भी उसी का ही है, ये उसने कुछ 5 दिन पहले ही खोला है। तो ये बहुत ही सुंदर होम स्टे है। मैं इस होम स्टे का नाम स्क्रीन पे भी दे दूंगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ये होम स्टे बहुत ही क्लीन है। तो ये होम स्टे में मैं आ गया और यहाँ पर मैंने रूम लेके, और ये होम स्टे मेरे को पड़ा 800 फॉर नॉन एसी, और 1200 अगर आप एसी लेते हैं। मैंने नॉन एसी लिया है क्योंकि बजट कॉन्स्टेंट्स आर देयर। सो कल चलिए, तो आज का दिन ऐसे ही रैप अप करके मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ क्योंकि आज आज का दिन बहुत ही टायरिंग गुजरा है। मैं अब थोड़ा सो जाऊँगा और कल सुबह हमें जगन्नाथपुरी के लिए निकलना है। तो चलिए फिर आज के लिए यही व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं, टाटा, गुड नाइट।